वेटलैंड्स वाला है ना जी सर started like मैं तो हूँ मतलब यहाँ पे start हुआ it's like yes now it's like hello everyone, good evening, कैसे हो आप सब लोग? Okay guys, so now guys, first of all सबसे पहले तो okay, good evening everyone who all are present here. Okay, Sundaja, good evening Kashif, Sanchari, Brinda, Anshika, Daydreamer, Jay Krishna, good evening everyone. Shamishta, good evening. Apurva, good evening. Jatan, Kushi, Akarshak, Ayushi, good evening everyone. Anshika, yeah guys, there was some technical issue. I'm just okay, just come. Okay, Daydreamer, nice name sir. Thank you beta, thank you. Okay, Lalit, good evening. Hasika, good evening beta. Divyanshu, Neelam, Archita, Utkarsh, good evening everyone. Okay, so guys, welcome to this session by Clat Possible and Attitude Status. Good evening beta, good evening Utkarsh. Okay, so guys, welcome to this session by Clat Possible. Okay, and I'm Shrikant Tripathi, and today we will be discussing a very important segment with reference to your Clat examination. Now guys, one thing which is really very important for this year's perspective, and that is, I can tell you, I can assure you. नहीं एक्चुअली Daydreamer बेटा इशू ये है ना कि अभी आज आई एम नॉट टेकिंग दिस सेशन फ्रॉम द स्टूडियो. ओके, देयर सीम्स टू बी सम इंटरनेट प्रॉब्लम, सो आई हैव टू टेक दिस सेशन ऑन द OBS. अदरवाइज स्टूडियो पे तो मैंने सेटिंग्स जो है वो आप लोगों के अकॉर्डिंगली करवा ली थी. सो या ब्राइटनेस का थोड़ा सा आज इशू रह सकता है, बट प्लीज काइंडली मैनेज फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. ओके so guys, like I have already told you कि भाई इस बार beta, at least in every session that I'm taking, okay, with the students, I'm telling you wetlands is going to be a really very important topic. Okay, you can expect 5 questions this year definitely from this particular topic. In fact, 2 topics मैं आपको बता रहा हूँ, एक wetland और एक है आपका आजादी का अमृत महोत्सव. Both these topics are really very important. Okay, so please जितना हो सके इन टॉपिक्स को अच्छे से ध्यान रखें. अभिनव, गुड इवनिंग. सूर्यांश, प्रगति, गुड इवनिंग एवरीवन. एंड गाइस प्लीज लाइक करते चलो साथ साथ में, बार बार बोलना नहीं पड़ेगा मेरे को. ओके, so guys, in today's session we are going to discuss a very important thing, India 75 Act 75. Now guys, first and foremost, 75, that means the 75th year of our independence, of Indian independence. Okay, और सेकेंडली यहाँ पर जो 75, जो दूसरा 75 का रेफरेंस है, दैट इज विद रेफरेंस टू द रामसर वेटलैंड साइट्स. ओके, द रामसर वेटलैंड साइट्स जो इंडिया में अब हमारे पास टोटल कितनी हो गई हैं, हमारे पास जो टोटल नंबर हो गया है दैट इज 75 नाउ. सो इन द 75th year of independence we have a total of 75 Ramsar sites. Okay, highest in the entire Asian continent now, right? So we'll be talking about the entire aspect, हर चीज क्या है, कैसे है. Okay, so please now guys, before we start, guys, just एक second before we start, yeah, right. So people, before we start, it is really very important for us to actually see and understand that what exactly a wetland is. एक वेटलैंड होता क्या है. ओके, नाउ गाइस, वेटलैंड के बारे में जनरल डेफिनेशन अगर आप मुझसे मांगोगे तो वेटलैंड का मतलब होता है बेटा एक ऐसा ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन अ लैंड एंड वाटर जो एक यूनिक तरीके के इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है. अब क्योंकि एक यूनिक तरीके का इकोसिस्टम जो है वो सपोर्ट होता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस इसका अपने आप बढ़ जाता है. यहाँ पे भी वही डिफाइन करके रखा हुआ है दैट वेटलैंड्स आर दोस एरियाज वेयर द सॉइल इज कवर्ड विद वाटर परमानेंटली. मतलब या तो एक कंप्लीट लेक फॉर्मेट होगा और इट इज कवर्ड सीजनली. तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा. बट यस, वेटलैंड, वेट रेफर्स टू व्हाट? वेट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ओके, it generally supports both the terrestrial and the aquatic species. That means both species, now be it the terrestrial ones, be it the aquatic ones, ये दोनों को पूरे तरीके से सपोर्ट करता है. ओके, नाउ वेटलैंड्स एक जगह पर अगर बनते हैं तो उसके पीछे काफी अलग अलग तरीके के फैक्टर्स होते हैं. नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ओके,
जैसे कि क्लाइमेट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग जाकर के देखते हैं तो आपको इक्वेटोरियल रीजन में जो वेटलैंड्स हैं उनकी जो टाइप होगी वहां पर बहुत ही डेंस टाइप ऑफ वेजिटेशन आपको मिलेगा। ओके, डेंस टाइप वेजिटेशन, राइट। सिमिलरली डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, ओके, हाइड्रोलॉजी, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सारी की सारी ऑल दीज थिंग्स दे एक्चुअली impact on how exactly a wetland is going to be, right? Yeah, Lalit, absolutely. Fine. Now, if we are talking about the wetlands, wetlands are among the most diverse and productive ecosystems. They provide essential services and supply all our fresh water. Now, when we are talking about the fresh water, okay, so wetlands, okay, for example, I can tell you that Mansar Lake in Jammu is a source of fresh water, right guys? So अलग अलग लेक्स होती हैं अलग अलग जगह पर जहां पर हम लोग बोलते हैं कि भाई, yeah, at times not every wetland, but yes, there are lot many wetlands which actually serve as a I'm sorry guys, which serve as a source of the fresh water. Okay, however they continue to be degraded and converted to other use. But problem क्या है बेटा, जहां जहां पर इंसान आ गया है वहां वहां पर प्रॉब्लम अपने आप स्टार्ट कर देता है। एक अच्छा खासा इकोसिस्टम है जो सर्वाइव हो रहा है, जो सर्वाइव चल रहा है। ओके, थैंक यू। ओके, माय प्लेजर हिमांशु। एक अच्छा खासा इकोसिस्टम है, लेकिन ह्यूमंस जो हैं वो अपने इंटरवेंशन की वजह से एक अच्छे खासे इकोसिस्टम की ऐसी की तैसी कर देते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इज दैट ऑफ द भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी। Now, भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी, इट इज इन राजस्थान, भरतपुर नाम का डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज आया करती थी। इस बर्ड स्पीशीज का नाम था द साइबेरियन क्रेन। इतना ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज, इतनी ज्यादा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होने लगी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आने के बाद हम लोगों ने देखा कि भाई ये साइबेरियन क्रेन ने, मेरे ख्याल से शायद 2018-19 के बाद से वी हैवंट सीन द साइटिंग ऑफ साइबेरियन क्रेन ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन भरतपुर का बर्ड सैंक्चुरी। सो बेटा ये जरूरी है हमारे लिए समझना कि भाई इट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन डिग्रेडेशन कि हम लोगों को कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स की बात करनी पड़ी, जिसके बारे में हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। ओके, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई कन्वेंशन जो थी, जो कन्वेंशन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, द कन्वेंशन वाज द रामसर कन्वेंशन। और इसी रामसर कन्वेंशन में हम लोगों ने अलग अलग तरीके की डेफिनेशंस जो है वो वेटलैंड्स को लेकर के दी है। नाउ वेटलैंड्स का मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी दैट एन एरिया जहां पर बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी है या द कंडीशंस आर मार्शी तो उसको हम लोग वेटलैंड बोल देंगे ना, नॉट एग्जैक्टली। The convention uses a broad definition of wetlands. It includes all lakes and rivers, underground aquifers, that means the sources of water. Siddharth says, hello, Shrikant sir. I'm good, Siddharth. Thank you. You're welcome, beta. You're welcome. Yeah, Jatan, exactly. Siberia से India आते थे, correct. Okay. So, swamps हो गए आपके पास. Okay, अब बहुत सारे अलग अलग तरीके के ना आपको not just vegetation but अलग अलग तरीके के aquatic species के अलावा आपको terrestrial species भी मिलेगी। जैसे जब मैं swamps की बात करता हूँ ना बेटा, तो मध्य प्रदेश वगैरह में swamp deer बहुत पॉपुलर है, मार्श डियर बहुत पॉपुलर है। तो ये जो स्पीशीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ सरवाइव कर सकती हैं उन कंडीशंस के ऊपर जो एक वेटलैंड प्रोवाइड करता है। अब यार अगर वेटलैंड ही नहीं रहेगा तो भाई हाउ विल दिस स्पीशीज सर्वाइव? मानसी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके, देन यू हैव द वेट ग्रासलैंड्स, ओके, यू हैव द पीटलैंड्स, ओएसिस, एस्चुरीज, डेल्टास। बेटा इनफैक्ट अगर हम लोग इंडिया के रेफरेंस में बात करते हैं, the largest wetland in India. Now guys, my question to you people is, the largest wetland of India is Vaibhav. Okay, Vaibhav says Sundarbans. Yes, exactly, beta. The largest wetland of India is the Sundarbans. कहां पे है ये Sundarbans? At the delta of both Ganga River and Brahmaputra. Okay,
Yes, Tanvi. Yes, Anshika. Absolutely. Abhinav, Khushi, Siddharth. Yes, exactly, beta. Bay of Bengal ke paas. Absolutely, Abhinav. Delta of Ganga and Brahmaputra. Yes, guys. So even in my state, there is a bird sanctuary near wetland Harike. Here, Beas Satluj meet, and it is a site of fishing and the delicious Amritsari of the state. Yes, beta. In fact, Harike is a Ramsar site. जो हरिके आपने बताया है सिद्धार्थ, हरिके इज अ रामसर साइट. ओके ना बेटा? हाँ, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंस का होगा वो. ओके, सो जब मैं डेल्टा की बात कर रहा हूं तो बेटा डेल्टा में हम लोग मैंग्रोव को कैसे भूल सकते हैं? ओके, मैंग्रोव, राइट. मैंग्रोव वेजिटेशन बहुत ज्यादा आपको सुंदरबन के डेल्टास पे मिलेगा. ठीक है, फाउंड बाय द मजूली आइलैंड इन असम. तन्वी, यस, ओके. And other coastal areas, coral reefs, and all human-made sites such as fish pond, rice paddies, reservoirs, salt pans, etc. जैसे बेटा मैं एक चीज आपको और बताऊं, यहाँ पर वेस्ट बंगाल वगैरह के आसपास, वेस्ट बंगाल के आसपास जितने भी वाटरी एरियाज है ना, वहां पर ना दो चीजों का कल्टीवेशन बहुत होता है. एक तो पैडी मतलब धान का, और एक जो होता है प्रोडक्शन वो होता है जूट का. गाइस, जूट के रेफरेंस में व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया? कैन यू प्लीज टेल मी? Jatin says Chilka Lake. Yes, beta, again it is. So, अगर मैं जूट के बारे में बोल रहा हूं, इंडिया का पोजीशन क्या है जूट के रेफरेंस में? इंडिया, बांग्लादेश. सूर्यांश, अभी आ रहा हूं बेटा, बस देखिए बेटा, ऐसा समझ लो सूर्यांश यहां पे, दैट ऑल रामसर साइट्स आर वेटलैंड्स. But all wetlands are not Ramsar site. ठीक है सूर्यांश, क्लियर है? Yes, largest jute manufacturer, producer के रेफरेंस में बेटा. Yes, absolutely. Okay, exactly बेटा. Yes, Vaibhav. Yes, Abhinav, Abhideep. Okay, largest producer. Okay, Lalit says, sir, according to the Ramsar wetland, both rivers and lakes can be a wetland. But why India has adopted that only lakes can be wetland? See guys, बेटा ऐसा समझो ललित, रिवर्स के रेफरेंस में हमारे पास अगर हम लोग बात करते हैं तो रिवर यूनिकली एक इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है. और अगर हम लोग बात कर रहे हैं रामसर कन्वेंशंस के रेफरेंस में, तो क्योंकि भाई एरिया टू मैनेज बिकम्स वेरी इजी. और यहां पर आप एक चीज समझो, रिवर्स जो है बेटा इंडिया में, दे आर द फ्रेश वाटर सोर्सेस. अगर हम लोग बात करते हैं बेटा रिवर की, तो रिवर बेटा हमारे पास क्या होते हैं बेटा? वो फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं इंडिया में. अब अगर फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं तो कहीं ना कहीं बेटा रिवर के पानी का एक्सप्लॉइटेशन होगा ही होगा. इट विल बी यूज्ड फॉर वेरियस अदर कैटेगरीज. अब एक बात समझिए कि अगर हम लोग एक डेडिकेटेड इकोसिस्टम दे देते हैं, क्योंकि रिवर में ऑलरेडी जैसे गैंजेटिक डॉल्फिन है बेटा आपके पास. अब गैंजेटिक डॉल्फिन लिव्स इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम. ओके, लेकिन अगर हमने पूरी की पूरी रिवर को ही अगर एक वेटलैंड की तरह अगर ट्रीट अगर हम लोग करने लगे, तो उसके कंजर्वेशन और बहुत सारी चीजों पे हमको फर्क पड़ेगा. इस वजह से बेटा हम लोग रिवर्स को नहीं, छोटे एरियाज, लेक्स जो हैं, उनको हम लोग जनरली जो है वो अपना, ये कह सकते हो आप, रामसर साइट्स हम लोग मान करके चलते हैं. ओके, या सो ये कुछ चीजें हैं बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया जूट और पैडी, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा ग्रो होती हैं. ओके, next, now let's talk about why do we actually need the conservation of wetlands, or क्यों है. okay, so the convention on wetlands is the oldest of the modern global intergovernmental environmental agreements. see guys, अगर आप सबसे पुराना environmental, yes, they have become blind. exactly Lalit. in fact जो गैंजेटिक डॉल्फिन्स होती हैं बेटा, they are blind, they cannot see. सोनार का इस्तेमाल करते हैं अपना शिकार पकड़ने के लिए या मूवमेंट के लिए. So guys, एक चीज ये समझिए कि अच्छा, can please anyone tell me, all of you who are present in the session, guys, please tell me which is the oldest, अगर मैं बात करता हूं environmental convention, oldest environmental convention other than the Ramsar, oldest environmental convention other than the Ramsar. Come on guys, jaldi. Lalit, Siddharth, Vaibhav, Tanisha, Ansh, Abhideep, Abhinav, Tanvi, सब कोई, Stockholm.
1972, yes, exactly. Sanchari, Tanisha, great. Hasika, yes, beta. Stockholm Convention. और यहीं पे ही इसी टाइम पे बेटा, if you guys remember, 1972 का ही वो रेफरेंस था कि हम लोग स्टॉकहोम कन्वेंशन की भी बात करते हैं, साथ ही साथ हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये ध्यान रखें बेटा, ओके, क्लब ऑफ रोम मीटिंग, क्लब ऑफ रोम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. यस एवरीवन, आर्यन सईद, एपेक्स प्रेडेटर, जतिन, तन्वी, ललित, दिव्यांशु, यस बेटा, एग्जैक्टली. लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, ये साथ साथ क्लब ऑफ रोम भी 1972 का ही हमारे पास ये जो है, आप कह सकते हो कि जो मीटिंग हुई थी वो 1972 में ही हम लोगों ने होते हुए देखी थी. ओके, क्लैरिटी है, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, अच्छा एक चीज और बता दो यार, मैं एक चीज और पूछ रहा हूं आपसे यार, ऐसा भी तो कुछ था ना, यूएनईपी, ये भी तो किसी चिड़िया का नाम था जो सुना था हम लोगों ने 1972 में. What was that? Guys, United Nations Environment Program, it too got started in the year 1972, beta. Exactly. इसी बात पे जल्दी से all of you, please tell me where exactly are the headquarters of UNEP. UNEP के headquarters जल्दी से बताओ. Exactly, everyone. Okay, yes. Stockholm Declaration, yes, exactly. United Nations Environment Program. Okay. Club of, sorry, headquarters की अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो headquarters है नायरोबी, और नायरोबी जो है एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका नाम है कीनिया, उसकी कैपिटल सिटी है गाइस. ठीक है, कैपिटल सिटी इज नायरोबी, राइट. अच्छा, क्लब ऑफ रोम किसी ने पूछा बेटा, क्लब ऑफ रोम वाज अ कन्वेंशन, एक तरीके की मीटिंग थी जहां पर बहुत सारे टॉपिक्स जैसे कि पॉवर्टी, लिटरेसी, ओके, साथ ही साथ एनवायरमेंट को लेकर के भी बात हुई. मेनी पीपल से कि पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये जो नाम जो हम लोगों ने सुना था ना, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा सुनता हुआ टर्म जो है वो हम लोगों ने क्लब ऑफ रोम में सुना था. बट यू ऑल नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बार टर्म आया 1988 में इन द ब्रंटलैंड कमीशन. एग्जैक्टली, यस बेटा, 87 में प्रेजेंट हुआ, 88 में पॉपुलर, राइट. सो अब बात करते हैं. अब बेटा अगर हम लोग यहाँ पे रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं तो सबसे पुराना कंजर्वेशन मेथड अगर कोई है, द ओल्डेस्ट कंजर्वेशन मेथड इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ, या कन्वेंशन, तो दैट इज द रामसर कन्वेंशन. और रामसर कन्वेंशन नाम जो है, ये नाम रामसर कहां से आता है बेटा? रामसर तेहरान, ईरान की जो कैपिटल है उसके पास एक जगह है, उसका नाम है रामसर, वहीं पे ये कन्वेंशन हुई थी, इसीलिए उसी से नाम पड़ गया इसका रामसर कन्वेंशन. ओके, सो ठीक है बेटा. ओके, नाउ the treaty was negotiated through the 1960s by country and non-governmental organizations concerned about the increasing loss and degradation of wetlands, habitat for the migratory water birds. Tehran ke paas, please send copy. Yes, Hamad, bilkul beta, will send definitely. Okay, yes, exactly. Okay, it was adopted in the year, in the Iranian city of Ramsar in 1971. और effect में कब आया? Effect में कब आया बेटा? It came into effect in the year 1975. Okay, 1975 में it came into force. India ने कब join किया बेटा इसको? When did India join? बहुत important है, ये पूछ सकता है. Okay, India joined Ramsar Convention on 1st February 1982. और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, प्लीज जल्दी से tell me without taking any time. When is the World Wetlands Day celebrated? When is the World Wetlands Day celebrated, guys? Exactly. तो 1 फरवरी 1982 को इंडिया ने ज्वाइन किया, और 2 फरवरी is celebrated as what? 2 फरवरी is celebrated as World Wetlands Day. ठीक है बेटा, World Wetlands Day, right? Fine. As of now, अगर हम लोग दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं तो we all know that there are over 2,400 Ramsar sites all over globe. Now guys, please tell me which country has got the largest area covered under
wetlands. Largest area covered under wetlands. जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी, come on guys. जल्दी बोलो बेटा. Okay, I'm still looking for answers. Okay, can anyone please tell me? Okay, second question to you guys. ठीक है, second question to you guys. सबके answers बताऊंगा अभी. Please tell me which wetland is the largest wetland in the world? Largest wetland in the world. Largest wetland in the world. Come on, guys. Sorry, Ramsar site. Yeah, Ramsar site. Bar. I'm sorry. Ramsar site. Yes, Ritika. Yes, exactly. The Pantanal. Okay. ठीक है. And which country has got the largest wetland? Sorry, largest number of Ramsar sites? जो आप लोगों ने दिया है ना बेटा, largest number of Ramsar sites की मैं बात कर रहा हूं बेटा यहां पर. Largest number of wetlands are with United Kingdom, whereas the largest area, that सबसे ज्यादा area covered under wetlands is Bolivia. It's a South American country, guys. Yes, exactly. United Kingdom has got a total of 175 Ramsar sites. Okay. So as of now, there are 2,400 Ramsar sites in the world, sprawling over an area of 2.5 million square kilometers. Million square kilometers. Suryansh, okay. See, ऐसा समझो बेटा. ऐसा है बेटा, एक जगह पर 5 वेटलैंड्स हैं. ओके, 5 वेटलैंड्स हैं. अब इन 5 वेटलैंड्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है, जो एक बहुत ही यूनिक इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है, इसका कंजर्वेशन मेरे को करना है. मैं गया रामसर कन्वेंशन के पास. रामसर कन्वेंशन ने भी ये चीज समझी कि हाँ भाई, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम और हमको इसको बचाना है. तो इस वेटलैंड को मैंने क्या किया, इस वेटलैंड को मैंने एक स्पेशल स्टेटस दिलवा दिया. नाउ द स्पेशल स्टेटस जो मैंने इस वेटलैंड को दिलवाया है बेटा, वो स्पेशल स्टेटस की वजह से दिस वेटलैंड विल नाउ बी कॉल्ड एज अ रामसर साइट. अब इस वेटलैंड का खास ध्यान रखा जाएगा. वही है जो बाकी के 4 वेटलैंड्स है, ये नॉर्मल वेटलैंड्स ही रहेंगे. सो दैट्स व्हाट आई सेड, एवरी रामसर साइट इज अ वेटलैंड, बट एवरी वेटलैंड इज नॉट अ रामसर साइट. हर रामसर साइट एक वेटलैंड होती है, बट हर वेटलैंड रामसर साइट नहीं हो सकता है. ठीक है बेटा, चलिए. आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर सूर्यांश. नेक्स्ट, अब क्राइटेरिया, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन कैन बी आस्क्ड इन दिस ईयर्स पेपर, क्या क्राइटेरिया होते हैं बेटा एक रामसर साइट बनने के लिए? सो एक वेटलैंड को अगर रामसर साइट डिक्लेयर करना है तो देयर आर 9 क्राइटेरियाज. 9 क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है. अगर 9 में से कोई एक क्राइटेरिया भी अगर एप्लीकेबल हुआ, मतलब 9 सेट्स होते हैं. देयर आर अ टोटल ऑफ 9 सेट्स, एंड आउट ऑफ दोज 9 सेट्स ओनली वन इज रिक्वायर्ड. और एक भी अगर फॉलो होता है ना, तो उस जगह को हम लोग रामसर साइट डिक्लेयर कर देंगे. ठीक है, जैसे कि क्राइटेरिया नंबर 1, it contains a representative rare or unique example of a natural or near natural wetland type found within the appropriate biogeographic region. Okay, एक rare हम लोगों को wetland मिला. दूसरा, उसमें किसी तरीके की vulnerable या endangered या critically endangered species अगर मिलती है तो. वैसे can please anyone tell me who releases the data on vulnerable, endangered, critically endangered species? एजेंसी का नाम क्या, जल्दी से बताओगे? Which agency releases all these data? IUCN. And beta, what is the full form? International Union for Conservation of Nature. Exactly. Okay, beta, what is the publication? Web of Siddhak, Sanchari, Rudraksh.
Okay, what is the publication called as? Book जो release करते हैं क्या नाम है उसका? Yes, Lalit, Tanisha, Syed, Abhinav, Sindhuja, Pragati, Khushi, Vaibhav. Red lost, red list. Beta, red data book, the red list. Okay, the red data book. Exactly, guys. ठीक है, तीसरे नंबर पर. ओके, हो सकता है कि भाई तीसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर एक वेटलैंड ऐसे प्लांट स्पीशीज को या ऐसे एनिमल स्पीशीज को वहां पर सपोर्ट करता है जो कि उस जगह की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहा है, देन ऑल्सो यू कैन गेट द क्राइटेरिया. ओके, यस, एग्जैक्टली एपेक्स प्रेडेटर. ओके, सैयद, तनीषा, प्रगति, जतिन, एवरीवन. या जानवी, बिल्कुल बेटा. ओके, चौथा, it supports plant or animal species at a critical stage in their life cycles or provide refuge during adverse condition. मान लो कि कोई प्लांट स्पीशीज है या कोई एनिमल स्पीशीज है, उसके सर्वाइवल पे बड़ा खतरा है और उसके सर्वाइवल को सपोर्ट करता हुआ जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम हमको एक पर्टिकुलर वेटलैंड में मिल जाता है और वो पर्टिकुलर स्पीशीज उसी वेटलैंड के भरोसे सर्वाइव कर रही है. सो क्या होगा, उस वेटलैंड को हम लोग क्या करेंगे, उस वेटलैंड को हम लोग रामसर साइट का कंडीशन दे देंगे. रुद्राक्षस बेटा, आई एम कमिंग ऑन टू इट. ओके, पांचवा, इट रेगुलरली सपोर्ट्स 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स. एक कंडीशन ये भी है कि अगर एक वेटलैंड 20,000 या उससे ज्यादा वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करता है तो भी उसको हम लोग क्या कंडीशन दे देंगे, तो भी हम लोग उसको एक रामसर साइट का दर्जा दे देंगे. बेटा, इट कंटेन्स अ रिप्रेजेंटेटिव रेयर. फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भैया रॉयल बंगाल टाइगर, ये रॉयल बंगाल टाइगर रेयर है ना बेटा, बिकॉज नॉर्मल टाइगर के कंपैरिजन में रॉयल बंगाल टाइगर इज बिगर, इट इज अ वेरी गुड स्विमर. साथ ही साथ अगर कलर की बात करें तो दे आर प्रीटी व्हाइटिश इन कलर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द नॉर्मल टाइगर्स. तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव या फिर रेयर मिल रहा है. ओके, ये चीज ठीक है ना बेटा. राइट गाइस, ओके, चलिए नेक्स्ट इसके बाद. ओके, somebody has asked me सर इसका हेड ऑफिस ग्लैंड. यस बेटा, ग्लैंड में ही है. ललित, बिल्कुल सही बेटा, ग्लैंड में ही है. ओके, क्राइटेरिया नंबर 6, it regularly supports 1% of the individual in a population of one species or subspecies of water bird. या फिर एक कंडीशन ये कि किसी एक पर्टिकुलर वाटर बर्ड की स्पीशीज या सब स्पीशीज का एटलीस्ट 1% उस वेटलैंड के ऊपर डिपेंडेंट हो. देन 7th क्राइटेरिया, इंडिजिनस फिश सब स्पीशीज. जैसे कि हम लोग बोलते हैं हमारे इंडिया में रोहू मछली होती है, यूनिकनेस है बेटा यहाँ की. ओके, ऐसी किसी फिश स्पीशीज को अगर सपोर्ट करता है तो भी वो वेटलैंड बन सकता है. इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर फिशेस, स्पॉनिंग ग्राउंड, ओके, नर्सरी और माइग्रेशन पाथ ऑन व्हिच फिश स्टॉक्स आइदर विद इन द वेटलैंड और एल्सवेयर डिपेंड. या फिर जैसे मंसार लेक, या बेटा जैसे आपने हरिके बताया, सिदक आपने बताया हरिके. सो ऐसी जगह है जहां पर मछलियों के लिए प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मछलियों के लिए फूड तो अवेलेबल है ही है, तो ये जगह अपने आप क्या बन जाएगा, एक तरीके का फिशिंग ग्राउंड बन जाएगी. ओके, यस. और लास्ट में बोल रहा है, इट रेगुलरली सपोर्ट्स 1% ऑफ द इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज और सब स्पीशीज ऑफ वेटलैंड डिपेंडेंट नॉन एवियन. उड़ने वाला नहीं, मतलब आप ऐसा समझो, वाटर बर्ड्स तो हम लोगों ने देख ली. मैंने बोला वाटर बर्ड्स के अलावा 1% किसी भी और स्पीशीज को, किसी भी और स्पीशीज का 1% अगर एक वेटलैंड के ऊपर डिपेंडेंट है तो भी हम लोग उस पर्टिकुलर वेटलैंड को क्या बोलेंगे, हम लोग उसको सपोर्ट कर देंगे एज अ रामसर साइट. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ गाइस, लेट्स टॉक टू the India 75 Act 75. In the 75th year of the independence, India has achieved this remarkable feat where the total number of Ramsar sites in India are 75, which is highest in the Asian continent. Okay, on 13th August 2022, India 11 more wetlands were given the status of Ramsar sites in India. Okay, Ramsar site का status 11 और को मिला है. ठीक है, this addition has taken India's tally of total Ramsar sites wetland to 75, therefore making 75 wetlands in 75 years of independence. Okay, now the Ramsar sites in India cover, आज के समय में while the time we are talking,
Which state has, sorry, what is the total area covered under these 75 Ramsar sites? Now the Ramsar sites have a total area of 1326677 hectares. That is 13,26,677 hectares. That are huge lot of area. Now, guys, my question to you guys: which state in India has got the highest number of Ramsar sites? Jatin? जतिन बेटा, इस साल जो लास्ट में 11 जो ऐड हुई है ना, उन्हीं के बारे में पढ़ो, उन्हीं के बारे में पढ़ो बस. वैभव, यस, वैभव, संचारी, अनादि, एपेक्स, ओके, ललित, तनीषा, अभिनव, अंश, सिंधुजा, सिदक, खुशी, प्रगति. एग्जैक्टली गाइस, द हाईएस्ट नंबर इज विद तमिलनाडु, दैट इज 14. और एक बात समझो, 14 मतलब आप ये चीज सोचो, मतलब इस साल से पहले इसके पास सिर्फ 4 थी, सिर्फ 4. जस्ट इमेजिन. ओके, सो अब जब इंडिया ने कन्वेंशन साइन करी, रामसर कन्वेंशन, तो भाई 82 से लेकर के 2013 तक देयर वर ओनली 26 रामसर साइट्स. लेकिन 2014 से 2022, दैट इज मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, एनवायरमेंट की फील्ड पे बहुत अच्छा काम किया गया है. वी हैव एडेड अनदर 49 न्यू वेटलैंड्स. इसी साल की बात करते हैं बेटा, तो एज ऑफ नाउ 28 sites have been declared as Ramsar sites. Tamil Nadu has the maximum number of Ramsar sites, which is 14 in number, followed by Uttar Pradesh, which has 10 Ramsar sites. 10 है उत्तर प्रदेश के पास बेटा. Okay, 10 Ramsar sites है उत्तर प्रदेश के पास. Right now, अब ये जो रिसेंट एडिशन हुआ ना बेटा, ये जो लास्ट, क्योंकि अब इस साल और कुछ नहीं ऐड होने वाला, ट्रस्ट मी, बिकॉज एटलीस्ट अगले एक साल तक 75 at 75, 75 वेटलैंड्स इन द 75th years ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. इस ऑब्जेक्टिव, इस आइडिया को हमको फॉलो करना है, इसलिए देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी अदर एडिशन. सो प्लीज बी केयरफुल टू रिमेंबर दीज 11 साइट्स, देयर नेम्स एंड देयर स्टेट्स, कहां से हुई हैं. यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं बेटा. ओके, एक मेरा सवाल आप लोगों से सबसे बेटा, which state in India has got the largest area covered under the wetlands? Not Ramsar site, wetlands. सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? जल्दी. वैभव, सिदक says area is UP and Gujarat, I guess. संचारी, UP. बेटा गुजरात जो है वो लार्जेस्ट एरिया लेकर के चलता है. ठीक है, सो अब यहाँ पे थोड़ा सा जो एडिशंस 13 अगस्त को हुए थे, थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं. 11 थी, कौन कौन सी देखते हैं जरा. उड़ीसा में 3 आपके प्लान्स ऐड हुए, तंपारा, हीराकुड रिजर्वॉयर, ओके, अंसुपा लेक. राइट, देन यू हैव यशवंत सागर. यशवंत सागर ये कहां से हुआ बेटा? यशवंत सागर ये आपका है मध्य प्रदेश में. बेटा नाम और स्टेट बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज बी केयरफुल. तमिलनाडु में आप देखिए सबसे ज्यादा चित्रांगुड़ी बर्ड सैंक्चुरी, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वुडुवूर बर्ड सैंक्चुरी, कंजिरकुलम बर्ड सैंक्चुरी, ये तमिलनाडु में हुआ है बेटा. बिल्कुल सीधा कि यशवंत सिन्हा से हो सकता है. ओके, थाने क्रीक महाराष्ट्र में ऐड हुआ है बेटा. हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और शलबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर के रेफरेंस में. और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि जम्मू एंड कश्मीर का नाम जरूर से जरूर ध्यान रखना. रीजन बीइंग बेटा जम्मू कश्मीर ऑलरेडी एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की वजह से न्यूज में है. सो डिलिमिटेशन कमीशन याद अगर हो सकता है ना बेटा, क्योंकि अब ये न्यूज में है तो कनेक्ट कर ले. या बेटा अंशिका, गोवा में भी एक वेटलैंड है आपके पास. ओके, गोवा में भी वेटलैंड्स है आपके पास. यस, ओके, सो प्लीज गाइस ध्यान रहे, ऑल दीज 11 नेम्स ध्यान रखिएगा. बाकी जो फर्दर एडिशंस हुए हैं, 3 अगस्त को भी कुछ एडिशंस हुए थे. टोटल कितने? 10. उस टाइम पे इंडिया के पास 54 वेटलैंड्स थे, तो ये 10 एडिशन होने के बाद 64 बन गए. तमिलनाडु में 6 वेटलैंड्स ऐड हुए, गोवा में 1 वेटलैंड हुआ, कर्नाटका में 1, मध्य प्रदेश में 1 और उड़ीसा में. ठीक है, तो यहां पर ये 5 wetlands were given the status. Okay,
5 wetlands were given the status of Ramsay sites on 26th of July. मतलब 49 थे 26th of July से पहले, ये 5 wetlands और ऐड हो गए, तो जो टोटल नंबर बढ़ गया वो बन गया बेटा कितना, वो बन गया 54. डिलिमिटेशन कमीशन नॉन कश्मीरी कैन वोट. यस सिद्धार्थ, बिल्कुल सही. Okay, Siddharth Singh Bakshi, Higam can be remembered as Gam or Soro. Okay, yeah, Vijayant है बेटा, काफी सारे states हैं. Okay, not just 1 or 2, काफी सारे states हैं. ठीक है, मे बी बिहार. ओके, कारगिल विजय दिवस. यस अंशिका, सतकोसिया. बेटा जानवी, एक एक करके 2-3 हमारे पास स्टेट्स हैं जहां पर एक ही एक है. जैसे असम में एक ही आपको वेटलैंड मिलेगा, दीप बोहर, आई गेस. ओके, दीप बोहर वो. सो देयर आर 2-3 स्टेट्स जहां पे एक एक करके वेबसाइट, केवल एक एक करके आपके पास रामसर साइट्स हैं. ठीक है, फाइन. 2 वेटलैंड्स को हम लोगों ने, और मतलब 47 थे, 2 को हम लोगों ने ऐड किया. ओके, तो वो हो गया 49. वो कब हुए थे बेटा, वो हुए थे 2 फरवरी 2022 में. ओके, राइट. सो गाइस, यहां पर मेरा अब एक सवाल आप लोगों से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहां पर, तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का सिग्निफिकेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बकीरान के लाज, यस. रानू का स्मॉलेस्ट, यस एग्जैक्टली वैभव, बिल्कुल सही बेटा. ओके, सो अगर मैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के बारे में बात करूं तो ऐसा समझिए. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ रामसर साइट, और इस रामसर साइट का लगातार डिग्रेडेशन हो रहा है. ओनली एप्लीकेबल, एक बात ध्यान रखे, Montriac's record is only and only applicable on Ramsar sites, no other wetlands. ध्यान रहे बिल्कुल भी. ओके, Ramsar site है, उसमें डिग्रेडेशन हो रहा है. अब डिग्रेडेशन इतना हो गया कि भाई कंजर्वेशन अब काम नहीं आ पा रहा उसके. तो क्या किया जाता है? Immediately that particular Ramsar site is transferred to Montriac's record. और जैसे ही Montriac's record के पास उस Ramsar site को भेजा जाता है, all the anthropogenic activities उसको immediately रोक दिया जाता है. मतलब ये जितना भी होता है ना, टूरिज्म, ये सारी की सारी चीजें, all these activities, खेती बाड़ी कुछ भी हो रहा हो, सब कुछ वहां पर immediately स्टॉप कर दिया जाता है. उस पर्टिकुलर रामसर साइट को तब तक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है जब तक कि वो एक अच्छे स्टेट में नहीं आ जाए, या एक डिसाइडेड डेजिग्नेटेड स्टेट में नहीं आ जाए. जब तक वो एक डेजिग्नेटेड स्टेट में नहीं आती, तब तक दैट पर्टिकुलर रामसर साइट इज केप्ट अंडर द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड. द डे इट इज रियलाइज्ड कि हाँ भाई, अब ये रामसर साइट मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, इसने अपना पूरा का पूरा ओरिजिनल स्टेट ऑब्टेन कर लिया है, दैट पर्टिकुलर रामसर साइट इज एक्चुअली रिमूव्ड फ्रॉम द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड. ओके, उसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से निकाल दिया जाता है. जैसे अगर एक साइट को मैंने रामसर साइट बना दिया, तो थ्रू आउट द लाइफ दैट पर्टिकुलर साइट विल रिमेन अ रामसर साइट, या दैट वेटलैंड विल रिमेन अ रामसर साइट. बट मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के केस में बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर एक पर्टिकुलर साइट को मैंने मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाला, तो जब तक तो उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो सिर्फ तब तक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रह सकता है. द डे इट्स सिचुएशन इज ओके, नॉर्मल या गुड टू गो, तो उस पर्टिकुलर रामसर साइट को निकाल दिया जाता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में से. ओके, ये चीज ठीक है ना. नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइज इज, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज द कंजर्वेशन, डू वी हैव एनी कंजर्वेशन प्लान फॉर वेटलैंड्स इन इंडिया? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रामसर साइट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल वेटलैंड्स के कंजर्वेशन प्लान. ओके, जल्दी से बताओ क्या नाम है उसका, प्लीज. ओके, जल्दी बताओ बेटा. विजयंत ने पूछा, which sites of India मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड? बेटा विजयंत, मॉन्ट्रियक्स में इंडिया की 2 साइट्स इस समय है. एक तो है लोकटाक लेक और एक है क्योलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान.
Okay, fine. Okay, fine. So guys, please, यहाँ पर जो मैंने आप लोगों से बोला, यहाँ पर मैंने आप लोगों से पूछा कि बेटा इंडिया का क्या है कंजर्वेशन प्लान. So all the wetlands which are present in India other than the Ramsar site, उसके लिए केंद्र सरकार ने 1984 में एक कंजर्वेशन प्लान स्टार्ट किया, जिसको हम लोग NWLCP भी बुलाते हैं, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम. ओके, as of now, while the time we are talking, the total number of wetlands present under this are 114 in number. 114 हमारे पास wetlands हैं यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं. Okay guys, ठीक है. So guys, this was with reference to today's session. Okay, yes, bilkul beta, bilkul. Okay, so guys, please come on now. Any guys, any queries? Beta, National Wetland Conservation Program, Rudraksh. Okay, so guys, I guess everything was okay. Okay guys, yeah. Okay, Jatan, thank you beta, you're welcome. Siddharth, okay, great. Lalit, thank you sir. Tanisha, yes sir. नहीं बेटा, इंटर गवर्नमेंटल फोरम की होती है बेटा, सब कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है बेटा. ओके, विजयन, थैंक यू सर, थैंक यू प्रगति. ओके, Siddharth, you're not in Lucknow, friend? No, Siddharth, no, I'm in Lucknow beta, but there was some actually this internet issue, so that's why I could not take the session on the panel. Otherwise I would have taken the session only on the panel. Okay, so ठीक है बेटा, right? बाकी कोई और क्वेरी, कोई और किसी भी तरीके का कोई, तो प्लीज पूछिए एकदम. कोई भी और क्वेरी अगर हम लोग बात अगर कर रहे हैं, जल्दी से पूछो, कहीं पे भी कोई दिक्कत. ओके, ठीक है गाइस, ठीक है, फाइन. थैंक यू हिमांशु. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू अंशु. बेटा हो गया, लास्ट ईयर हो गया ना बेटा, वुहान वाला. एंड मतलब वुहान वाला जो था 2021 में भी था. आई थिंक इट गॉट शिफ्टेड. ओके, it's not that important Lalit, not that necessary. Okay, not that necessary beta, बाकी आप देख सकते हो. So guys, I hope all of you enjoyed the session very much. Okay, so guys, I hope each and every one of you enjoyed the session. Okay, इसी तरीके से all of those who want the PDFs या जो इसकी PPTs चाहिए, kindly I have already given my mail ID in the previous session. Please, okay, आराम से आप लोग मेरे को मेल कर दीजिएगा. Will forward the PPT या PDF जो भी आप लोगों को चाहिए वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी. Okay guys, so guys, okay, this is Shrikant Tripathi signing off. Okay, I hope all of you enjoyed my session. Okay, thank you very much. Good evening everyone. Okay, और please ध्यान रखें आप लोग, study hard, study well. Okay, and please take care of yourself. Okay, okay Siddharth, bye bye. Okay Vaibhav, thank you. Syed, thank you. Khushi, Lalit, thank you. Good, great beta. Anshika, take care sir. You too beta. Lalit, bye bye. Syed, Siddharth, Abhinav. Okay guys, bye bye, take care, have fun, please.